چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کے اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ میں آپ سب کو کیٹیکیٹیکل سینٹر کی جانب سے آج کے اس تربیتی اجلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیٹیکیٹیکل سینٹر مومنین کی تربیت کے لیے بہت سے پروگرام کرتا ہے، جس میں خاص طور پر خاندان کی سطح پر، اسکولز کی سطح پر، پیرشز کی سطح پر، ڈائسس کی سطح پر، جو آج ڈائسس آف کراچی کے آلٹر سروس کے لیے رکھا گیا ہے۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، سب کی مسیح میں سلامتی ہو۔ اتنے سارے آلٹر سرورز کو آج اکٹھا دیکھ کر 10 کلو خون بڑھ گئے۔ کتنا بڑھا ہے پتہ نہیں، آپ لوگ کو بڑھا ہے کہ نہیں، میرا 10 کلو خون بڑھ گیا۔ آلٹر سرورز کی جو خدمات ہیں، جو آپ سب اپنے کاہن صاحبان کے ساتھ مل کر الطاف کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پریکٹیکل جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ خوبصورت طریقے کے ساتھ اور ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ وہ تعلیم جو پاک ماں کہتی کلیسیا میں بتاتی ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اس عبادت کو خوبصورت بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، ضرور آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، ایجوکیشن، انفارمیشن اینڈ ووکیشن، اس لیے ہماری تربیت وہ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کی بلاہٹ ہے۔ ضروری ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں، جو دستاویز، جو ڈاکومنٹس، جو چرچ ہمیں دیتا ہے، وہ دفعہ ہم نے سیکھا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ جیسا کر رہے ہیں پھر ویسا ہی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ سکیں جو چرچ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو میں اس کا آغاز جو ہے، آج کی اپنی اسٹوری کا آغاز ایک چھوٹی سی کہانی سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کہانی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام سنا ہو، مقدس سینٹ تارچیسس کا نام سنا ہے یا سنو؟ سینٹ تارچیسس کا نام سنا ہے؟ اور کسی نے نہیں سمجھا؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ وہی سینٹ تارچیسس، وہ آلٹر سرورز کا پیٹرن سینٹ ہے۔ کسی نے نہیں سنا؟ کسی نے بھی نہیں سنا؟ کوئی بھی نہیں؟ کوئی فرام دا ٹیچرز؟ اینیون فرام دا ٹیچرز؟ اتنے سارے وہ ایک کونے میں چھوٹے بچے کا ہاتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے، اس نے پیچھے کر دیا۔ کوئی بھی نہیں؟ سینٹ تارچیسس کا نام نہیں سنا آپ نے کبھی؟ یس نو تو بولے، یس اور نو؟ نو، اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ سینٹ تارچیسس جو ہے یہ اٹلی کے شہر روم میں پیدا ہوا۔ یہ آلٹر سرور اس کے دل میں اتنا جنون تھا، اتنی خواہش تھی کہ وہ فادر کے ساتھ مل کر
الطار کی خدمت کرے. ان کے درمیان بہت سارے جو ہیں وہ نوجوان تھے, آلٹر سرورز تھے, لیکن سینٹ تارچیسس جو ہے اس کا کچھ پاک یوکرس کے ساتھ, اقدس یوکرس کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا. آپ کے پیٹرن سینٹ کا نام ہے مقدس تارچیسس. کیا نام ہے؟ مقدس تارچیسس. مقدس تارچیسس جو ہے وہ اٹلی کے شہر روم میں پیدا ہوا اور اسے بڑی خواہش تھی کہ وہ فادر کے ساتھ مل کر الطار کی خدمت کرے, اور اس سے بڑھ کر اس کا جو شوق تھا, اس کا جو لگن تھا, وہ زیادہ پاک یوکرس کے ساتھ تھا. اور ان دنوں میں جو ہے رومن ایمپرر جو تھے وہ اس کا دور تھا, اور جو مسیح کا نام لیتے تھے انہیں مار دیا کرتے تھے. اب ان دنوں میں بہت سارے نوجوان جو ہے وہ کاہن کی مدد کیا کرتے تھے. کاہن کی مدد. ایک دن جو بڑے لڑکے جنہوں نے اس دن مدد کرنی تھی فادر کی کہ وہ پاک یوکرس لے کر اس علاقے تک جاتے, اس دن وہ نہیں آئے. یہ تارچیسس جو تھا اس دن اکیلا موجود تھا. تو فادر کہنے لگا کہ آج پاک یوکرس کون لے کر جائے گا؟ تو تارچیسس نے فوراً سے ہاتھ کھڑا کیا, کہنے لگا فادر میں لے کر جاؤں گا. فادر کو ڈر تھا, خوف تھا کہ باہر اس نے پاک یوکرس لے کر جانی ہے تو باہر تو حالات بڑے خراب ہیں. اس نے کہا نہیں فادر آج آپ مجھے موقع دیں, میں چاہے چھوٹا ہوں, مجھے موقع دیں. فادر نے انہیں پاک یوکرس دے دیا تاکہ وہ جا کر بیماروں کو جو ہے وہ پاک یوکرس دے کر آ جائیں. یسوع کو بیماروں کو جا کر دے کر آ گئے. یہ باہر نکلتا ہے, فادر نے ایک لینن کے کپڑے میں پاک یوکرس کو ڈال کر وہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اپنا سفر شروع کرتا ہے. جیسے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اس محلے میں پہنچتا ہے جہاں پر زیادہ تر مسیحیوں کو مارا جاتا تھا. اب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تارچیسس جو ہے اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کر کچھ لے کر جا رہا ہے. انہیں تجسس تھا کہ یہ کیا چھپا کر لے کر جا رہا ہے, کیا ایسی چیز ہے جو یہ ہم سے چھپانا چاہ رہا ہے. تو کچھ لڑکے آئے, انہوں نے پوچھنا چاہا, لیکن تارچیسس جو ہے وہ چھپاتا ہے, اسے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. کسے لگا کے رکھتا ہے؟ چھاتی کے ساتھ. کسے لگا کے رکھتا ہے؟ پاک یوکرس کو. اب وہ بتانا نہیں چاہتا کہ یہ کیا چیز ہے, چھپا کے رکھتا ہے. تو انہیں غصہ آتا ہے, لڑکوں کو غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے انہیں تو وہ اسے پتھر لے کر اسے سنسار کرتے, اسے مارتے. جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یوکرس جو ہے جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو پاک یوکرس جو ہے اس کی چھاتی پر ہوتی ہے. The word liturgy means word of the people. لتوریا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا کام. میں بھی آپ کی طرح ایک چھوٹا آلٹر سرور تھا. ہم بھی بہت دفعہ بہت سارے سوالات سنتے رہے, بہت ساری واقعات میں, بہت سارے کاموں میں. خاص طور پر جو مین جملہ ہے جی وہ فادر کچھ کہتے ہیں, آپ کچھ کہتے ہیں, یہ فادر کچھ کہتے ہیں, نیا فادر آئے گا وہ کچھ اور کہے گا. لیکن آج آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی فادر ہو, the general instructions of the Roman Missal, اس کو شارٹ فارم میں جرم کہا جاتا ہے. جنرل انسٹرکشنز آف دا رومن مشن. اس کے اندر جو کچھ ہے یہ عالم کی کلیسیا کے اندر یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے, اتحاد پیدا کرنے کے لیے, اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ فادر کی کچھ کہتا ہے کہ وہ فادر کچھ کہتا ہے. ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ بلیسڈ سیکرمنٹ کے لیے. بہت دفعہ جو عام چرچ ہوتا ہے جہاں پر بلیسڈ سیکرمنٹ نہیں بھی ہے, پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ, بہت سارے لوگ جو ہے جینیفلیکشن. یاد رکھیں یہ جینیفلیکشن صرف اور صرف یسوع کے لیے ہے, فور دا بلیسڈ سیکرمنٹ اونلی. گڈ فرائیڈے کے روز جو ہے پاک صلیب کو جو ہے ہم اس دن جو ہے جینیفلیکٹ کرتے, اس کے علاوہ ہم جینیفلیکٹ نہیں کرتے. تو یاد رکھیں دو قسم کے میں نے بھاؤ بتائے, ایک ہیڈ کا اور ایک باڈی کا. ہیڈ سے مراد جب آپ کی پوری باڈی نہیں ہلتی, آپ کا صرف سر ہلتا ہے, اور جب
बॉडी से मुराद कि आपका सर और बॉडी यहाँ तक जो है इस तरह प्रोफाउंड बाउ करते हैं, इसको आपने जहन में रखना है। जेनिफ्लेक्ट की बात की है, जेनिफ्लेक्ट अगर आप वहाँ पर आज जहन में रखें या अगर आपको पता भी है तो अच्छी बात है। मुझे बताएं अगर ब्लेसिड सैक्रामेंट है तो क्या आप जेनिफ्लेक्ट करेंगे? अगर वहाँ पर ब्लेसिड सैक्रामेंट मौजूद है, कुछ चर्चिस में जो है वो ब्लेसिड सैक्रामेंट है और कुछ चर्चिस में थोड़ा सा जो है वो हटकर है, लेकिन कुछ ऐसे चर्चिस हैं जिनमें ब्लेसिड सैक्रामेंट सामने नहीं है लेकिन अलग से एक रूम बनाया गया। इन्हीं को ज़हन में रखना है कि भाई कहाँ पर याद रखें जो हमारा जेनिफ्लेक्ट है रिजर्व है किसके लिए? फॉर द ब्लेसिड सैक्रामेंट। उसके बाद अगर वहाँ पर नहीं है तो आप नहीं करेंगे, एक्सेप्ट गुड फ्राइडे वाले दिन। यहाँ पर जब मुझे याद है किसी ने सवाल किया था तो यहाँ पर उसका जवाब, मिनिस्टर्स कैरिंग द प्रोसेशनल क्रॉस और कैंडल्स bow their heads instead of genuflecting। ये बड़ी अहम बात है। प्रोसेशन में जब आ रहे होते हैं, अब जाहिर सी बात है एक के हाथ में क्रॉस है, ठीक है, प्रोसेशनल क्रॉस है और दो के हाथ में जो है वो कैंडल्स है। अगर तो ब्लेसिड सैक्रामेंट सामने है तो इंस्ट्रक्शंस बताती हैं कि उन्होंने जेनिफ्लेक्ट नहीं करना, दूसरों ने करना है लेकिन उन्होंने नहीं करना, उन्होंने सिंपल जो है बाव करना है। लेकिन आप लोगों ने इस बात को आज याद रखना है कि भाई कोई भी बात है, ये जो आज हम बातें सीख रहे हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं रोमन मिसल की। जो ये बात जो यहाँ पर मरकूम है, जो यहाँ से हम बात सुनेंगे वो अटल है। वो दोबारा दोहरा रहा हूं, वो पोप हो, वो कार्डिनल हो, वो बिशप हो, वो फादर हो, डीकन हो, ये हम सब ने फॉर द यूनिवर्स, फॉर द यूनिफॉर्मिटी, फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द चर्च हमने इसको फॉलो करना। प्यूरिफिकेशन और इंसेंसेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेवरेंस एंड ऑफ प्रेयर का काम है इंसेंस करना। और वो जो धुआं है जो आसमान की तरफ उठता है वो हमारी दुआ की इलामत है कि हमारी दुआ जो है वो किसकी तरफ जाती है? आसमान पर जाती है, खुदा की तरफ जाती है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो हर जगह होती है वो भी आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फादर आज इंसेंस करना है कि नहीं करना? लैंड आ गए भाई, इसका इंसेंस का लैंड के साथ या कोई और चीज किसी और चीज के साथ किसी चीज का जिक्र, एनी फॉर्म ऑफ मास। बहुत शुक्रिया फादर अफजल फाम ने बहुत ही सादा और उम्दा अल्फाजों का चुनाव करते हुए अपने टॉपिक को लतूरिया की अमली शक्ल में हम तक पहुंचाया है। आप में से अगर किसी को कोई सवाल है तो हम आखिरी हिस्से में उनके जवाब के लिए फादर को सामने बुलाएंगे ताकि आप अपने सवाल कर सकें। फादर श्री की खिदमत में फरिश्तों से भी अफजल हैं वो सब जन्नत के वारिस हैं, फरिश्तों से भी अफजल हैं वो सब जन्नत के वारिस हैं, मसीहा के नाम पर जो ज़िंदगी नशात करती है। गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, आप जो आए शहर में तो शहर भी अच्छा लगा। अभी मैं अपने बिशप इज्जत माँ बिशप बैनी मारी ट्राउस को दावत दूंगा कि वो प्लीज़ सामने आए। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। भूख लगी है जी, रिफ्रेशमेंट्स हैं नीचे, उन्होंने मुझे भी नहीं दिया, तो उसके बाद जाएंगे रिफ्रेशमेंट के लिए। सबसे पहले मैं फादर आमिर और इनके साथ साथ आज की टीम फादर अमान, फादर अफजल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऑल्टर सर्विस के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम और सीखने के नाते से एक अच्छा मौका फराहम किया है। अभी हाल ही में मैं इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन पाकमास हुई थी और वहाँ पे
यकीनन फादर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सिस्टर्स ने खूबसूरत अलतार की डेकोरेशन की, लेकिन एक अहम किरदार ऑल्टर सर्वर्स ने अदा भी किया। हम 7 बिशप्स नुंसियो भी थे, तो बार बार इसको निकालना, माइटर पहनना, ऑल्टर सर्वर्स ने बहुत अच्छी तरह से हमारी खिदमत की। और जब ऑल्टर सर्वर्स अच्छी खिदमत करते हैं तो हमारी लतूरिया भी बड़ी खूबसूरत तरह से अदा होती है। जब लोगों ने और मेरी अम्मी, मेरे भाई बहन कनाडा में बैठे हुए थे और उन्होंने जब सारी इबादत देखी, बस तारीफ कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत इबादत। और यकीनन इबादत फादरों की वजह से, सिस्टरों की वजह से जिन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन आप ऑल्टर सर्वर्स की वजह से भी इबादत बहुत अच्छी हुई है। तो सबसे पहले बहुत सी तालियां ऑल्टर सर्वर्स के लिए। याद रखो ऑल्टर सर्विंग के लिए अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहला अमल क्या है? वो है तैयारी, प्रैक्टिस और प्रेपरेशन। यानी तैयारी लफ्ज़ है और प्रैक्टिस है। इस इबादत के लिए जो फादर इंचार्ज थे वो तकरीबन 1-2 महीने पहले तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से आप भी अगर अच्छी सर्विंग करना चाहते हैं, याद रखो तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। आज फादर अफसल आपको बता रहे थे 1 2 3 1 2 3, ये सिर्फ प्रैक्टिस से। बेल्स बजाना मुख्तलिफ तरह से है, सिर्फ प्रैक्टिस से। दूसरे नंबर पर दुआया जिंदगी। जब से हमारे ऑल्टर सर्वर्स लड़कों को छोड़कर लड़कियों की तरफ, तो फिर मेकअप है नहीं। ऑल्टर सर्वर्स मैं बताता हूँ, मुल्तान में सबसे फेथफुल, साबित कदम हर इबादत में आना लड़कियां। और अक्सर दफा अगर नहीं आते तो कहते थे कि भाई की वजह से वो हमें नहीं पहुंचाया। लेकिन ऑल्टर सर्वर्स की दुआया जिंदगी पर जोर देना लाजमी। तो मैं दूसरी बात जो आपको कहता हूँ, एक तो प्रैक्टिस है, दूसरा दुआया जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप ऑल्टर सर्विंग करते हैं तो ऑल्टर सर्विंग से पहले दुआ करें, हर रोज दुआ करें, बाइबल रीडिंग भी करें। आपने आपसे पूछना है कि एक अच्छा ऑल्टर सर्वर दुआ के करीब, यीशु के करीब। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि ऑल्टर सर्वर एक अच्छे मसीह की गवाही देता है। अगर आप ऑल्टर सर्विंग करें चर्च में और बाहर जाके आप दोस्तों के साथ लड़ें या गाली दें, क्या ये एक अच्छी गवाही है? नहीं। इसी वजह से ऑल्टर सर्वर का तीसरा बहुत अहम काम कि उसने यीशु की गवाही देनी है। गालियों से नहीं, लड़ाई से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि मोहब्बत के जरिए से। तो यही 3 पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप ऑल्टर सर्विंग के नाते से 3 बातों पर अगर गौर करें। पहला है प्रैक्टिस, तैयारी। दूसरे नंबर पर है दुआया जिंदगी। और तीसरे नंबर पर है अच्छी मसीही गवाही। और उम्मीद है कि आप अपने ऑल्टर सर्विंग में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बुझते हुए चिराग को रोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग को रोज़ा करेंगे हम। आप आगे हैं तो जश्न चिराग आप करेंगे हम। आज के जो हमारे दूसरे मुकर्रर हैं, उनका ताल्लुक रहीम हैदरी सेंट जेम्स पैरिश से है। और सेंट जेम्स पैरिश में ही ऐसा पैरिश में इसको
तकरीबन 8 सालों से कैंप के रुतबे पर फाइज है और मुख्तलिफ पैरिशों में 52 पैरिश में इस काम कर चुके हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद है ताकि मैं लतूरिया की अदायत के बारे में बता सके। तो आप सबकी तालियों में मैं दावत देता हूँ रेवरेंड फादर नवाज का। इज़्ज़तमान आर्कबिशप एंड ट्रेविस, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर, तमाम असातिज़ा इकराम और ख़ास तौर पर प्यारे बच्चों, क्या है थोड़ा सा फादर ने बता दिया, लेकिन इसका मेन हेडिंग है लतूरिया क्या है। एक दूसरी मेन हेडिंग होगी अल्तार के खादमीन के काम, उन्हें मैं बयान करूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो आप जो भी काम करते हो, जुलूस में जाते हो, सलीब उठाते हो, कैंडल उठाते हो, कितनी कैंडल, सारा इसी के अंदर आ जाएगा। और तीसरा जो है वो पाक मास की इलाहियात, पाक मास की रूहानियत। पाक मास के बहुत सारे हिस्से हैं, मेन दो हैं, कलाम का हिस्सा और दूसरा कौन सा है? मेरे साथ रहना है आपने, अब जवाब देते रहना है। पहला हिस्सा कौन सा है और दूसरा कौन सा? यूखरिस्ट का। दो हिस्से हैं बड़े, इन दो हिस्सों में भी छोटे छोटे हिस्से हैं, उसके बारे में बयान करूंगा। थोड़ा सा लेंथी होगा, जहां पर आप बोर हो रहे होगे हाथ खड़ा कर देना, वहां पर हम थोड़ा चेंज कर लेंगे मौसम, ठीक है? क्लियर? अभी आपकी तवज्जो चाहिए मुकम्मल तौर पर। जब हम बात करते हैं लतूरिया की, बार बार ये लफ्ज़ होते हैं लतूरिया, इंग्लिश में लिटर्जी। हमारे लिए कभी कभार ये लफ्ज़ है ना अजीब से लगता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? फादर भी बार बार कहता है अभी लतूरिया साहब का आगाज कर रहे हैं, फादर बार बार कहेगा अभी लतूरिया कलाम, लतूरिया ये, लतूरिया वो। लतूरिया है क्या? लतूरिया एक लफ्ज़ है, लाम ते वाव रे और क्या ये और अलिफ, लतूरिया, ठीक है? लतूरिया असल में एक अमल है, एक काम है जो आप सब करते हो। हम सब मसीही जो कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब वो अमल करते हैं। उस अमल, उस काम को जो इबादत में होता है उसे लतूरिया कहते हैं, सादा अल्फाजों में। किसको ये एजाज़ हासिल है? तो आप तो बिल्कुल खुशकिस्मत हुए, आप तो बरकतों से भरे हुए हुए, क्योंकि मुक़द्दस जॉन मैरी विanney कहता है कि जब अक़दस कुर्बानी गुजरानी जा रही होती है तो फरिश्ते भी उस लम्हे कॉन्सेक्रेशन के टाइम, तबद्दुल के वक्त, फरिश्ते भी अल्तार के सामने झुके होते हैं। यानी तो आप फरिश्तों के साथ झुके होते हो, तो अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम सब मिलकर कहते हैं खुदा का शुक्र हो, सब मिलकर। किसके लिए? कि खुदा ने हमें अल्तार के खादम होने के लिए चुना है, और ये बहुत बड़ी बुलाहट है। तो इस बुलाहट को अच्छी तरीके से जीना है, इसलिए लतूरिया में आप अपना अहम किरदार अदा करते हो। लतूरिया के दो खास बातें हैं, खुदा की सताइश करते हैं लतूरिया में लोग, और दूसरा क्या है, लोगों की तकदीस और पाकीज़गी का काम करते हैं। हर अतवार जिसमें काहिन और आप अल्तार के पास खड़े होते हैं, ये असल में बाज़ गश्त ये बड़ा टिपिकल उर्दू का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है हम आने वाले जो इबादत है जो आसमान पर हो रही है उसकी तस्वीर, उसकी छवि देखते हैं पाक मास में। और इसका हवाला हमें मिलता है, हवाला लिख सकते हैं, घर जाके पढ़ेंगे। इसका हवाला मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी 12वीं आयत। वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस कहता है अभी तो हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, लेकिन बाद में हम उसे रूबरू देखेंगे। और ये अक़दस पाक मास में हम खुदा यीशु मसीह उस आसमानी इबादत का तजर्बा करते हैं। हम देखते हैं कि कोई स्लाइड्स होने स्लाइड्स, अब मैं आ जाता हूँ अल्तार के खादमीन स्लाइड्स की तरफ।
قربانی. یاد رکھیں کہ کلام مقدس ہی میں سے ہماری پاک ماس عکس ہوا ہے. پاک ماس جب ہم کرتے ہیں بہت سارے لوگ آلٹر سروس میرے پاس آتے ہیں, فادر وہ میرا دوست وہ کیتھولک نہیں ہے, تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہو التار کے ارد گرد کھڑے ہو کر, التار پر کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کھڑے ہوتے ہو ٹیبل کے پاس, تو یہ تو بائبل مقدس میں ہے کہیں پر کوئی حوالہ ہے بائبل مقدس میں؟ تو غور سے سنیے گا بھی اپنے دوستوں کو جواب دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کو جواب دینے کے لیے بھی سنیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. بائبل مقدس ہی میں سے اس اقدس قربانی میں شریک ہوتے ہیں. تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں پاک ماس, اصل میں پاک ماس کی نئی شکل خدا یسوع مسیح نے آخری کھانے میں دے دی. اور کاہنوں کا گھرانہ کون سا تھا؟ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا لاوی. لاوی کے قبیلے کو بنی اسرائیل قوم کے نقشے میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی. ان کی جگہ کہاں پر تھی؟ ان کی جگہ ہیکل میں تھی. باقی 11 قبیلوں کو نقشے میں دیکھے, یہ یہودا کا قبیلہ ہے, یہ زبلون کا قبیلہ ہے, یہ فلاں کا قبیلہ ہے. لاوی کے قبیلے کو کوئی جگہ نہیں ملی. لاوی کے قبیلے کی جگہ کہاں تھی؟ ہیکل, جہاں پر مذبح تھا, جہاں پر التار تھا. اور لاوی ہی کے گھرانے میں سے کاہن تھے, اور لاوی ہی کے گھرانے میں سے آلٹر سرورز بھی تھے. آلٹر سرورز وہ جو التار کی خدمت کرتے تھے, کاہن کی مدد کرتے تھے, کاہن کی مدد کرتے تاکہ وہ قربانیاں گزران سکیں. اور قربانیاں کون سی گزرانتے تھے؟ حوالہ لکھ لیں, احبار کی کتاب اس کا پہلا باب. احبار کے پہلے 6 ابواب آپ پڑھیں گے تو آپ کو قربانیوں کا ذکر ملے گا. خطا کی قربانی, نظر کی قربانی, سوختنی قربانی, کچھ قربانیاں لکھی ہیں, تقصیر کی قربانی, طعام کی قربانی, سلامتی کی قربانی. اور قربانی کیا ہوتی تھی؟ جانوروں کی. وہاں پر سب لکھا ہوا ہے. مذبح کے اوپر کاہن کے پاس آلٹر سروس کیا کرتے تھے؟ اسے چھری دیتے تھے, اسے آگ لگانے کی لکڑیاں فراہم کرتے تھے, اس کو برتن باسن فراہم کرتے تھے. اس وقت پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں میں. نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح نے آپ سب کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ کس طرح سے التار کی خدمت کرنی. تو پرانے عہد نامے کی جو عبادت تھی وہ قربانی تھی جو کاہن گزرانتے تھے, یہ قربانیاں گزرانتے تھے. یا آپ گھر جا کر احبار کی کتاب اس کے پہلے 6 باب, ہر باب میں ایک قربانی کا ذکر ہے اور ڈیٹیل سے ذکر ہے, آپ پڑھیے گا. اوکے, بنیادی فہرست سے تمام سیکرامنٹل. ابھی ایک ہوتا ہے سیکرامنٹ, ایک ہوتا ہے سیکرامنٹل. 2 الگ الگ لفظ ہیں. ایک ہے سیکرامنٹ اور دوسرے کیا ہے؟ سیکرامنٹل. سیکرامنٹس اور سیکرامنٹل 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سیکرامنٹ کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو کاہن سیکرامنٹ میں کر رہا ہوتا ہے, عمل, وہ کام. اور سیکرامنٹلز کیا ہے؟ وہ چیزیں جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس سیکرامنٹ کے اندر. کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں سیکرامنٹ میں؟ بپتسمہ میں کون سی چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے؟ تیل, پانی, سفید کپڑا اور پاشائی موم بتی. یہ سیکرامنٹلز کہلاتے ہیں. پاک ماس میں کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں؟ سلیب, لبان اور کیا؟ کینڈل اور جتنی بھی چیزیں استعمال ہو, سیکرامنٹلز ہیں. وہ سیکرامنٹس کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں سیکرامنٹل. میں چھوٹی سی کہانی پسند ہوتی ہے آپ کو؟ کہانی پسند ہے؟ ایک کہانی میں سناتا ہوں آپ کا, تھوڑی بوریت دور کرو. ہلو مسٹر, کہانی پسند ہے؟ کہانی پسند ہے؟ کہانی 2 عورتوں کی. 2 عورتیں جو ریگستان میں کھو جاتی ہیں بیچاری, اپنی گاڑی لے کر جاتی ہے, لیکن سہارا ڈیزرٹ بہت بڑا ڈیزرٹ ہے, بہت بڑا ریگستان ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر کھو جائے بغیر گائیڈ کے تو وہ وہاں مر جائے گا, وہ نکل نہیں پائے گا. اس کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھی بڑا مشکل میں پیش آتا ہے. کوئی خوش قسمت ہو جو بچ جائے, ورنہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہوگا ان کے ساتھ. 2 خواتین گاڑی میں جا رہی تھی ریگستان, ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور وہاں بیچاری پھنس جاتی ہے. پورا
पूरा दिन इंतज़ार कर रही होती हैं, रेस्क्यू टीमें आएंगी, रेस्क्यू टीमें आएंगी, कोई रेस्क्यू टीम वाला नहीं आता। बेचारी रेस्क्यू टीमें निकल जाती है, लेकिन इतना बड़ा रेगिस्तान है और कोई नज़र नहीं आता दूर दूर तक। और फाइनली एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन एक औरत तो देखती है कि हमारा क्या हाल हो गया, मिट्टी से बाल भरे हुए हैं, हवा चल रही है, तो वो बड़ी अपने आप को बनारस संवारने को बड़ा ख्याल रखती है। वो क्या करती है, वो अपने पर्स में से शीशा निकाल कर अपना मुँह साफ कर रही होती है। शीशा जो है वो शीशा से निकाल कर अपना मुँह साफ कर रही होती है। और वो शीशा जो था वो जब सूरज की शुआ, जब सूरज की जो किरणें हैं उस शीशे पर पड़ती हैं तो दूर से उसकी जो उसका अक्स है हमें मिल जाता है। कभी किसी को तंग करना आता है, आप क्या करते हैं गर्मी में धूप में, शीशे से छेड़ते हैं, है ना, धूप की रोशनी से उसके मुंह पर मारेंगे, ऐसा होता है ना। तो ऐसा हुआ, वो अपना मुंह साफ कर रही थी बेचारी, उसे क्या पता था कि वो जो सूरज की रोशनी है उस शीशे पर लगेगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूर तक चमकेगी। और रेस्क्यू टीमों ने देखा वो कोई चीज़ चमक रही है वहाँ पर। रेस्क्यू टीमें पहुंची वहाँ पर और उन्होंने उन 2 खवातीन को बचा लिया। वो 2 खवातीन कैसे बची? उस किसकी वजह से बची? उस छोटे से शीशे की वजह से। उन्हें पता नहीं था कि ये शीशा जो है ना हमारी जान बचा देगा। उसने तो बेचारे ने निकाला कि मुँह साफ करे, थोड़ा मेकअप वगैरह करे, थोड़े बालों को मिट्टी से झाड़े, उसने शीशा में उस घर से निकाला, शीशा निकाला, लेकिन उसकी जो शुआएं थी वो रिफ्लेक्ट हुई, रेस्क्यू टीमों तक पहुंच गई। मेरे प्यारे बच्चों, सैक्रामेंटल भी इस शीशे का किरदार अदा करते हैं। सैक्रामेंटल्स दिखने में वो आम चीज़ें होती हैं, पानी आम है जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, लेकिन जो पानी बपतिस्मे में जब इस्तेमाल होता है उसका असर ही फ़र्क हो जाता है, उसका असर ही, उसका फजल जो मिलता है वो फ़र्क होता है। वो सैक्रामेंटल कहलाते हैं। एक आम सी चीज़ ने 2 खवातीन की ज़िंदगी को बचा लिया और ये सैक्रामेंटल हमारी ज़िंदगियों को बचा देते हैं। स्लीव जो हम पहनते हैं सैक्रामेंटल है, जब उसे प्रेस करके पहनते हैं। जब स्लीव पहनते हैं तो हमें डर खौफ नहीं होता। जब हम डर रहे होते हैं तो स्लीव पहन के स्लीव को पकड़ लेते हैं ऐसे करके, तो डर खौफ दूर हो जाता है, हमें यकीन होता है कि खुदा हमारे साथ है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। सैक्रामेंटल जो हमारी मदद करती, इसलिए सैक्रामेंट से फर्क है। और सैक्रामेंटल में क्या क्या चीज़ें हैं? बासन है, पाक मास में जो इस्तेमाल होता है। बासन क्या होता है? वो जो छोटा बोल होता है जिसमें हाथ धोते हैं। और क्या है? सफ़ेद कपड़ा है, कॉपरल। कॉपरल क्यों कहते हैं इस कपड़े को? कॉपरल क्या है? कॉपरल क्या है? आप वर्ल्ड सर्वर्स हो और कितने सालों से हो? हाँ, सीनियर इंचार्जेस बोल रहे हैं, इंचार्ज भी बैठे हैं। अगर इंचार्जेस को भी नहीं पता तो बड़ी शर्म की बात है। कॉपरल क्या है? तो ये खड़ा होकर बोले में समय लगेगा। अच्छा, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कॉपरल वो बड़ा रुमाल होता है जो चैलिस के ऊपर रखा होता है, पाक प्याले के ऊपर रखा होता है, उसे कॉपरल बोलते हैं। क्यों कॉपरल बोलते हैं? क्योंकि वो कपड़ा जब बिछाता है तार पर काहिन, तब उसके ऊपर अपने उसको पानी गुजराता है, तभी उसके ऊपर रोटी तोड़ने की रस्म होती है। तभी वहाँ पर क्या होता है? खुदा यीशु मसीह के पाक बदन को पाक में खुदा यीशु मसीह के खून में मिलाया जाता है, ताकि उसके ज़र्रे उस कपड़े पर, अगर ज़र्रे गिरते हैं उस कपड़े पर गिरे। और उस कपड़े को कॉपरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉपस से निकला है। कॉपस बोलते हैं बॉडी को। कॉपस किसे बोलते हैं? बॉडी, जिस्म को कॉपस बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरल क्यों? उस बॉडी को रोल करने वाला, कॉपस क्रिस्टी, खुदा यीशु मसीह के बदन को वो अपने अंदर लपेटता है, इसलिए उसे कॉर्पोरल बोलते हैं। कॉर्पोरल एक सैक्रामेंटल है, प्यूरिफिकेटर एक सैक्रामेंटल है, पाल एक सैक्रामेंटल है, पैटर्न, ये तमाम चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको आती होंगी। अगर कोई पूछे ना कि पाक मास कलाम में मुकद्दस में से निकाल कर दिखाओ, तो लूका की चीज़ निकाल देना। उसमें क्या हुआ था?
वहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो 2 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ था एमाउस के रास्ते में। दोनों हिस्से पाकमास के खुदा यीशु मसीह ने किए। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? कलाम का हिस्सा और यूखरिस्ट का हिस्सा। कलाम का हिस्सा चलते चलते खुदा यीशु मसीह उनके साथ हुए। वहाँ पर लिखा है, घर जाके पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है जब खुदा यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था तो उन 2 शागिर्दों ने यीशु को नहीं पहचाना और यीशु ने उनसे सवाल किया तुम क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जी तुझे नहीं पता कि यरूशलेम में ये वाक़या पेश हुआ है? यीशु ने कहा कौन सा वाक़या? उन्होंने कहा तू वाहिद अकेला यरूशलेम में अजनबी है जिसे उस वाक़ये के बारे में नहीं पता। यीशु ने कहा कौन सा वाक़या बताओ तो सही। जी मसीह को मसलूब कर दिया गया। फिर यीशु ने क्या किया? कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु ने तौरेत और सहाइफ़े अंबिया, तौरेत और सहाइफ़े अंबिया यहूदियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। उन्हीं में से हवाले निकाल कर उन्हें पेशन गोइयाँ बताई कि ऐसा तो होना ही था, ये तो ज़रूर था, ये तो होना ही था और उसने जी उठना था। और ये सारी बातें बता रहा उन्हें रास्ते में। कलाम का हिस्सा चल रहा है, कलाम का हिस्सा चल रहा है। एक वक्त आता है, एक लम्हा आता है कि जब वो बैठ जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं और शागिर्द कहते हैं आप भी आ जाओ, अजनबी हो आप भी आ जाओ खाना खा लो। और यीशु जब उनके साथ खाना खाने बैठता है यूखरिस्ट का हिस्सा शुरू होता है। और यूखरिस्ट के हिस्से में क्या करता है खुदा यीशु मसीह? रोटी लेता है, उसे बरकत देता है, वो रोटी तोड़ता है और जब रोटी तोड़ता है तब वहाँ पर कलाम में लिखा है कि रसूलों 2 शागिर्दों की आंखें खुल गई। उन्होंने यीशु को पहचान लिया कि ये तो हमारा खुदावंद है। तो पाकमास में भी ऐसे ही होता है। अक़दस कलाम जो हमें तैयार करता है खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए किसमें? यूखरिस्ट में। बात है जब आप पाकमास में शरीक होते हो तो पाकमास में शरीक जब होते हो तो आपका क्या किरदार है? लतूरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना मैंने शुरू में। लतूरिया का मतलब है लोगों का काम। लोगों का काम मतलब आप भी उस इबादत में शरीक हो। ना सिर्फ काहिन बोले बल्कि आपने भी बोलना है, आपने जवाब देना। जब काहिन कहता खुदावंद आपके साथ हो, आप मुमिन को छोड़ दो लेकिन आपको पूरी पाकमास के जवाब आने चाहिए, पूरी पाकमास के जवाब आने चाहिए। जब काहिन कहता है उसी के जरिए उसी के साथ उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रूह कुद्स की वहदानियत में हमेशा से हमेशा आपका जवाब क्या होगा? आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में